हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। So let's crack NEET UG by the top educators of the country with the quality content and great learning experience. So let's crack NEET UG. Let me introduce myself. I am Rahul Dagaria. I have been teaching physics since 5 years in the various top institutions of the country. Till now, I have mentored to the several thousands of aspirants of IIT JEE and NEET. I'm Pitek from NIT Rourkela. Yes, I'm an engineer from the National Institute of Technology, Rourkela, and now I'm available here on Unacademy to help the students of the country to learn the concepts of physics with the best notes and best examples. Let's talk about our motto that is called our new anthem. We want you to crack the UG with the India's largest learning platform, Unacademy. For that, get plus subscription and access to the unlimited live and recorded courses from the India's best educators. Yes, Unacademy provide you the India's top educators. If you did not download the Unacademy app yet, please go to Play Store and type Unacademy Learning app and download it now and get the India's top educators in your device. What you will get you buy Unacademy subscription, you will get the daily live classes, live tests and quizzes, the structured courses, and unlimited access to the live and recorded lectures. So during the live classes, you can chat with your educators, you can engage in discussions, you can have one-on-one interaction with your educator, you can ask your doubts, you can also discuss your answers. And by the you can evaluate your performance with our regular mock tests and quizzes, and you can get its detailed analysis. After that, structured courses. So what do you understand by structured courses? Many students don't know after completion of one topic which topic they should start. So Unacademy provide you the complete courses of your target exam in an ordered manner. If you buy Unacademy subscription, then you will get all three subjects: physics, chemistry, and biology. Biology includes both zoology and botany, and all topics you will get in a or in a structured manner. And then you'll get the unlimited access to the live and recorded lectures. You can watch it again and again. Next, I will talk about our YouTube channel. So you can subscribe to Unacademy YouTube channel. There you will get the live classes from the Unacademy's educators, and you will also find some recorded lectures also. But if you want better experience, better learning experience, go to the Unacademy app and buy the plus subscription. There you will get everything in an ordered manner and by the top educators of the country. So our top educators, you can see they are from IITs, NITs, and they are MBBS doctors from the top MBBS colleges and AIMS. Next, I will talk about the Unacademy subscription. You can see here 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 month subscriptions are available. So you can see the 1 month subscription fee is 6,000 rupees, and 12 month subscription fee is 30,000 rupees, and 24 months, yani 2 years fee is 36,000 rupees. So if you use my referral code RAHULD Rahul D, then you'll get additional 10% discount. So you need to pay only 5,400 rupees for 1 month and 27,000 rupees for 12 months. So I would like to suggest you should buy 12 months or 24 months, because you can see for 1 month you need to pay 6,000, and for 12 months you need to pay 30,000 rupees. So it is just 5 times, but there are 12 months. So for 12 months you need to pay only 5 month fee, and after that you can see 24 months you need to pay only 36,000 rupees. Yani ki you need to pay very less fee compared to any other coaching institute. So please prefer 12 months or 24 months subscription. Just you are paying 32,400 for 2 years, and you are getting all three subjects: physics, chemistry, and biology. Biology includes both geology and botany subject.
right? So use my referral code. I am here to help you. Rahul, DRAHULD. This is just like a promo code. This is my referral code. If you'll use this, you'll get 10% discount and you can buy the Unacademy subscription and you can take the advantage of its services. So now I'm going to start our topic projectile motion. So in the last lecture, we have discussed the ground to ground projectile motion. So today we'll discuss the further things like equation of trajectory, after that projectile from a tower, horizontal projectile motion, those things we'll discuss. So let's go through the topic we have seen in the last lecture. So that was just horizontal projectile. That is just the ground to ground projectile motion, and we'll just go through it. So let's see. Here in the diagram, I have shown a particle is projected with initial velocity u. It is following a curved path, and acceleration due to gravity is downward. This r is its range, and h is its height. Theta is angle of projection. So what we have done, we have taken two components, one along x-axis, one along y-axis. So we can say it's the example of motion in two dimension or motion in a plane, right? So because it is motion in two dimensions, so separately we'll calculate its various parameters along the separate horizontal and vertical directions. So in horizontal direction, we can see initial velocity is u cos theta, yani ki x component of initial velocity, and acceleration is zero because there is no air resistance. So acceleration in horizontal direction is zero. After that, its velocity in y direction, that is u sine theta, and acceleration in y direction, that is g downward. Okay, because the acceleration due to gravity is always in downward direction. So we can say in vector form the initial velocity will be u vector is equals to u cos theta I cap plus u sin theta j cap, and after that we'll talk about acceleration vector. Acceleration vector will be what? Minus g j cap. What we have done, just u is equals to ux I cap plus uy j cap. I am just giving the value of ux and uy, so I am getting u cos theta I cap plus u sin theta j cap. Similarly, acceleration a vector is equals to minus g j cap. Okay. After that, velocity at any time t. So velocity of the projectile at any time t. What is that? That is v is equals to u plus at. Actually, whenever we want to find the velocity at any time t and acceleration is constant, in that situation we can use the equation of motion v is equals to u plus at. So just put the value of u and value of acceleration here and keep the multiple of I cap together and multiple of j cap together. So we'll get what? We will get here v vector is equals to u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. So this is the velocity at any time t. After that, we'll discuss the displacement of the particle at any time t. So डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे। कौन सी वाली? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करते थे। तो वही इक्वेशन में यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करना है? जिस u की वैल्यू रखो, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू भी रख लो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू थी माइनस g j कैप। जैसे ये वैल्यू मैं रखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा? आई कैप के मल्टीपल्स को एक साथ रखो, जे कैप के मल्टीपल्स को एक साथ रखो। हमें क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जे कैप। यहाँ पर ए वेक्टर जो है एक्चुअली ये g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, राइट? ओके। देखो यहाँ पर बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है क्या? Vx is equals to u cos theta। ये क्या है? किसी टाइम t पर x component of velocity u cos theta, और आफ्टर दैट Vy is equals to u sin theta minus gt। so ये क्या है? ये y component of velocity है किसी टाइम t पर। यदि हमें स्पीड फाइंड करनी है तो क्या करना होगा? हमें पता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट? इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो vx और vy की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द स्पीड। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने देख लिया कि बेसिक कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। Next are the formulas of ground to ground projectile motion. The very first formula, which is very important, that is time of flight. That is equal to 2u sin theta upon t. T is equals to 2u sin theta upon t. U is the initial velocity. Sin theta, theta is angle of projection, g is acceleration due to gravity. आप सभी जानते हैं। तो maximum height h is equals to u square sin square theta upon 2g and horizontal range r is equals to 2u square sin theta cos theta upon g। इसी को हम लिख सकते हैं r is equals to u square sin 2 theta upon g। ये सारी चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, डिराइव की थी, इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हमें समझ में आई थी। अभी मैं बस ये फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कराना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ रखा। अब हम आगे बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हमने बात की ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। तो उसमें आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। तो लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है? कोई भी पार्टिकल मोशन के दौरान, जो भी ड्यूरिंग इट्स मोशन जो भी पाथ ये फॉलो करता है, उस पाथ की इक्वेशन को ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। The path followed by the particle during its motion is called its trajectory. Okay, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जस्ट इसके x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन होता है। तो किसी भी टाइम t पर यदि हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो यहाँ हम लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज द रिलेशन बिटवीन in instantaneous coordinates, here x and y coordinates of the particle. Okay, तो इस चीज को फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को हम लोग को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेते हैं पार्टिकल का। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा था, वही पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि ओरिजिन को हमने इनिशियल पोजीशन कंसीडर किया था। तो हम बोल देते हैं कि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू यू cos थीटा इनटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा इनटू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर जे कैप। एक्चुअली एक ही जगह यहाँ पर हम g लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, इस a वेक्टर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ g। ओके, तो मैं ये पेन यूज करता हूँ एंड दिस a is g। We are writing here u sin theta into t minus half gt squared j cap. Okay, so this is what? This is just a displacement vector or position vector, we can say, right? So next is we consider horizontal direction, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ horizontal direction को consider करते हैं। तो ये क्या है? ये this is the x component of position, right? तो उसको हम x से represent करते हैं and x is equals to u cos theta into, okay, आफ्टर दैट हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो पोजीशन का कंपोनेंट है उसको हम देखते हैं। तो वो क्या होगा? द पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सो उसको हमने यहाँ लिख लिया y इज इक्वल्स टू uid माइनस हाफ gt स्क्वायर। ui की वैल्यू होती है u sin थीटा, वही यहाँ पर रख ली। तो y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं किया, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वही चीज हमने यहाँ पर फिर से अप्लाई की है। हमने सिंपली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल लिखी है, उसका x कंपोनेंट को x बोल दिया, x कोऑर्डिनेट बोल दिया, और उसका y कंपोनेंट को, पोजीशन वेक्टर के y कंपोनेंट को हमने y कोऑर्डिनेट बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? तो मैंने पहले ही बोला था हम लोगों को क्या करना है, किसी भी टाइम t पर x और y में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सॉरी, यदि रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो हमें देखना होगा कि इन दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कौन सी टर्म कॉमन है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में टाइम जो है वो कॉमन है। हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालो और सेकंड इक्वेशन में रख लो, तो क्या हो जाएगा? टाइम एलिमिनेट हो जाएगा और y एंड x में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। Let's move to the next slide. Eliminating time from equation 1 and 2.
अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ से टाइम की वैल्यू देखो, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा को मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूँ, ठीक है। तो डाल दिया तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की जगह फिर से x अपॉन यू कॉस थीटा, और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने में u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। एक्चुअली ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x tan थीटा, राइट। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर एक टर्म और आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभी कि क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस u को कैंसिल करना है इस u से, ठीक है। तो ये पेन, क्या आ गया पेन, या तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिलके बनाएंगे टैन थीटा, u से u कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा हट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा टैन थीटा, ओके। दिस इज टैन थीटा, ओके। सो फाइनली व्हाट इक्वेशन वी आर गेटिंग, x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, sorry। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। बट इसका हम मॉडिफाइड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, तो इसके मॉडिफाइड फॉर्म हम आगे देखेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। यदि ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। देखो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो है ना, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव होता तो हमें मिलता अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। दिस इज जस्ट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला called the trajectory of projectile motion, and the other forms of the trajectory equation क्या कर सकते हैं हम, y is equals to x tan theta minus gx square। अब यहाँ पर नीचे cos square था, यदि cos square को ऊपर ले जाते हैं, 1 by cos square होता है secant square theta, तो यहाँ पर मैंने sec square theta लिख लिया, और नीचे 2 square आ ही रहा है। अब sec square theta हमें इनइक्वालिटी पता है क्या, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। तो जस्ट sec square theta की जगह हम 1 plus tan square theta डाल देते हैं, तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है, y is equals to x tan theta minus gx square into 1 plus tan square theta divided by 2u square, okay। So this is also an important form, the most important form is this first वाला form, and ये वाला थोड़ा कम important है। वैसे आप कोई भी एक फॉर्म याद रखते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम उसको एक और फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये बेसिक इक्वेशन मैंने लिख ली, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, यानी कि x tan थीटा हम बोल सकते हैं इसको, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2u cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो y इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा को कॉमन निकाल लिया, u से u तो कैंसिल हो ही चुका है, tan थीटा को कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही tan थीटा, x tan थीटा को कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचता है सिर्फ और सिर्फ 1, ओके। 1 माइनस, अब ये जी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक एक्स तो बाहर चला गया, तो यहाँ सिर्फ एक ही एक्स बचा, तो जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एज इट इज, ठीक है। क्योंकि हमने tan थीटा को कॉमन लिया है, तो नीचे क्या आना चाहिए, tan थीटा, ओके। तो फाइनली you'll get y is equals to x tan theta 1 minus gx upon 2u square। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, tan थीटा को लिख लूंगा sin थीटा upon cos थीटा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, तो नीचे बचेगा sin थीटा cos थीटा, राइट। तो ध्यान से देखिए, तो हमें क्या मिलता है, 2u square sin थीटा cos थीटा, और ऊपर से एक g भी है, तो g को इसके नीचे लिखेंगे। ये तो रेंज का फॉर्मूला बन गया, 2u square sin theta cos theta upon t, that is the formula of range। So here we are getting y is equals to x tan theta 1 minus x upon r। हमें यहाँ पर सिंपली रेंज का फॉर्मूला मिल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो फाइनली दिस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y is equals to x tan theta 1 minus x upon r। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है, x प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट है, tan theta, theta is the angle of projection, r is the horizontal range of projectile motion, okay।
लेट्स मूव, हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा है उसका एप्लीकेशन करना सीखते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी इक्वेशन सीखी है? हमने सबसे पहले इक्वेशन सीखी है y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। एक तो ये इक्वेशन हो गई। सेकंड, y is equals to x tan theta minus gx square into 1 plus tan square theta upon 2u square। And third, y is equals to x tan theta 1 minus x upon r। एक्चुअली ये अभी आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन इन फॉर्मूलाज को आप एक पेज में लिख लो और बार बार इनको रिवाइज करो। हर थोड़ी थोड़ी देर में इनको बार बार रिवाइज करते रहो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी एंड लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। तो अब हम इन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन डायग्राम सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। एक्चुअली देखो ये यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोई लाइक कैनन हो सकती है या फिर कोई पिस्टल हो सकती है, जहां से एक गोला या कोई भी पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट किया गया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर ये पार्टिकल जाके टारगेट को हिट करता है। तो देखो टारगेट कहाँ है? टारगेट हॉरिजॉन्टल सरफेस से 40 मीटर अबव रखा हुआ है, ठीक है। तो और वो कितनी डिस्टेंस पर है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी जो है वो 50 मीटर है, यानी कि ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा होगा एंड जस्ट टारगेट को हिट करेगा और हिट करके आगे जाके गिरेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और इसके पाथ में ही कहीं पर टारगेट आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई 50 मीटर्स एंड वर्टिकल जो डिस्टेंस हो गई 40 मीटर, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज 50 मीटर एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द टारगेट इज 40 मीटर। ओके, अब क्या करेंगे? सिंपल, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में इस वैल्यू को रख लो। वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में वैल्यू रख के आंसर तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होगा? बेस्ट ये होगा कि आपको वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है, आप tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो, वही आपके लिए आसान होगा। ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, यानी कि सब जगह आपको tan थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? y is equals to x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू 1 + tan² थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। इस फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? tan थीटा। tan थीटा देखो, अब साइन कॉस दो आ जाते तो हमें कंफ्यूज कर देते, इसलिए यहाँ पर क्या है, सारा का सारा tan की फॉर्म में, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। कि हमें क्या करना है? थीटा जो फाइंड करना है, बस इसमें वैल्यू रख लो। y कोऑर्डिनेट हो गया क्या? y कोऑर्डिनेट इज 40, x कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 50 माइनस जी की वैल्यू हम 10 रख सकते हैं, यू की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है तो वो मैंने रख ली। तो ये क्या हो गया? सॉरी, जी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 50 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है 2u स्क्वायर, तो u की वैल्यू भी 50 है तो वो आ गया 2u स्क्वायर, राइट। 1 + tan² थीटा एज इट इज। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट जैसे ही इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। क्या मिलती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें tan स्क्वायर आता है, tan आता है और कुछ वैल्यू आती है, राइट। तो जैसे ही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें मिलता है tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे टू वैल्यूज मिल रही हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 9। दोनों ही वैल्यू करेक्ट है। पता है ना आपको, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर हम लोग यदि प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों ही में रेंज सेम होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी एक कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, तो हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहा है और जाते वक्त भी इससे टकरा जाए, और ये भी हो सकता है कि ऐसे जा रहा है और ऊपर से वापस जब आ रहा है तो आते वक्त टकरा जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर टू एंगल्स आ रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, and another angle is tan theta is equals to 9 यानी कि theta is equals to tan inverse 9। That's it. So these are the answers right for this question. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। It is just a simple application of equation of trajectory y is equals to x tan theta minus gx square into 1 plus tan square theta divided by 2u square। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम दूसरे फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख रहे हैं ट्रेजेक्टरी का। सो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल at some instant the particle was observed at a position having coordinate x is equals to 24 meter and y is equals to 12 meter। what is the range of the projectile? देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, ठीक है। और हमसे रेंज पूछा है, तो यार सिंपल सी बात है, रेंज पूछा है, x और y कोऑर्डिनेट दिया है और
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दिया है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यार इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ r नहीं पता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। लेट अस यूज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू 12 है तो रख दी। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया है, एक्चुअली क्वेश्चन में एक्चुअली y की वैल्यू 15 थी, तो वहां गलती से मैंने 12 टाइप कर लिया है, तो लेट अस राइट इट 15। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। क्या, तो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, तो मैंने y की वैल्यू रख ली 15 इज इक्वल्स टू x tan थीटा यानी कि 24 tan 37 डिग्री 1 माइनस x अपॉन r, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 24 है, तो 24 बाय r। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो मुझे रेंज की वैल्यू मिलती है 72 meters। So here we are getting the range of the projectile 72 meters। I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कब कौन सा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन यूज करना है। जब आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछा है, तो आप ऐसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, यानी कि tan थीटा, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अभी इस क्वेश्चन में आपको एंगल दिया, x कोऑर्डिनेट दिया, y कोऑर्डिनेट भी दिया और रेंज पूछा है, तो साफ ही पता चल रहा है रेंज वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है। आप सोचोगे कि सर हम रेंज का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, ऐसे कैसे यूज कर सकते हो, रेंज का फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी आती है, वो तो यहाँ दी हुई है ही नहीं, इसका मतलब आप वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इट इज अबाउट another application of the same formula, so let us read the question first. Ball is thrown from the ground level so as to just clear a wall 10 meter high at a distance of 10 meter from the point of projection। क्या बोला गया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 10 मीटर की हाई वॉल भी है, तो वॉल की डिस्टेंस 10 मीटर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और वॉल की हाइट भी कितनी है, 10 मीटर है। उसके जस्ट ऊपर से क्या करना चाहिए, पार्टिकल पास होना चाहिए, राइट, एंड फॉल्स एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि जैसे ही उस वॉल को क्रॉस करता है, ये पार्टिकल जा रहा है वॉल को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने के बाद 30 मीटर दूर, उस वॉल से 30 मीटर दूर जाकर गिरना चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक्चुअली यहाँ वॉल लिख लिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन होता है, वहां से 10 मीटर डिस्टेंस पर वॉल है और वॉल की हाइट भी 10 मीटर है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट 10 मीटर हो गया, y कोऑर्डिनेट भी 10 मीटर हो गया, तो यहाँ पर हमें वॉल के टॉप का कोऑर्डिनेट मिल गया जहां से पार्टिकल जस्ट पास होना चाहिए 10, 10, ठीक है। आफ्टर दैट बोला है कि वॉल से 30 मीटर दूर जाकर पार्टिकल गिरता है, इसका मतलब हमें पता चल गया पार्टिकल 10 मीटर आया और उसके बाद 30 मीटर और गया और जमीन पर पहुंच गया, तो मतलब ये 30 मीटर चल रहा है, राइट। इसकी सॉरी 10 प्लस 30 मीटर यानी कि 40 मीटर, तो यानी कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 40 मीटर, x कोऑर्डिनेट 10 मीटर, y कोऑर्डिनेट 10 मीटर एंड रेंज इज 30 मीटर। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो वैल्यू रखते हैं, रेंज हमें पता चल गया 10 मीटर प्लस 30 मीटर इज 40 मीटर, x कोऑर्डिनेट 10 मीटर, y कोऑर्डिनेट भी 10 मीटर, तो इसको एक फार्मूला में रख लेते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसी में हमने रख लिया, तो 10 y कोऑर्डिनेट 10 था, x की वैल्यू भी 10 थी, रख ली, tan थीटा पता नहीं है, फाइंड करना है, into 1 minus x upon r, x की वैल्यू 10 एंड रेंज की वैल्यू 40। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं हमें मिलती है tan थीटा की वैल्यू और यहाँ से हमें मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, राइट। तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें डायरेक्शन मिल गई, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। रिमेंबर 4/3 जो होती है tan इनवर्स 4/3 वैल्यू जो होती है वो
53 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 53 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये उसकी डायरेक्शन हो गई। नेक्स्ट थिंग, फिर और सॉरी वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज पता है, अब तो एंगल भी पता चल गया, रेंज पता है एंगल पता है, अब क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला लगा लो, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, सिंपली रेंज का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें tan थीटा मिल गया है, थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो sin 53 डिग्री की वैल्यू और cos 53 डिग्री की वैल्यू रख सकते हैं। तो cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 एंड sin 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। ये 53 कहाँ से आया, ये हमने सॉल्व किया ना, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 यहाँ से आया। ठीक है, बस हो गया। जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो u की वैल्यू मिलती है हमें 25 अंडर रूट ऑफ 5/6। ओके, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को के जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इन फॉर्मूलाज को भी हम यूज करके वेरियस पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि एक्चुअली क्या है, ये भी एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल्स टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल्स टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को किसी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट वहां पर क्या आ रहा है, tan थीटा भी आ रहा है, cos थीटा भी आ रहा है, सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी तो उसको यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को एक सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो और देखो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, हमें हिंट दे दिया कि रेंज फाइंड करनी है, मतलब रेंज वाला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करता है। ठीक है, तो अब मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, तो वो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा, ब्रैकेट आ जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यानी कि x tan थीटा, x के साथ वाली टर्म हमें कॉमन लेनी है ताकि ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यदि रूट 3x को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो मैंने रूट 3x को कॉमन ले लिया, रूट 3x को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, अब जी एक्स स्क्वायर में से x तो बाहर चला गया, रूट 3 भी कॉमन लिया, मतलब नीचे की तरफ रूट 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं। तो हमें मिल गया जी एक्स अपॉन 2√3। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इस वाली इक्वेशन में से मैंने रूट 3x को कॉमन लिया। ठीक है, तो हमें मिल गया फाइनली। अब ये जो g है ना, g को 2√3 के नीचे लाके लगा देते हैं, तो हमें मिलता है y इज इक्वल्स टू रूट 3x इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2√3 अपॉन जी। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, एक्चुअली ये जी मैं नीचे लेकर आ गया हूँ, तो यहाँ पर ये जी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मैंने गलती से लिख लिया है, तो चलो उसको अब हटा देते हैं। पेन लेना होगा इसके लिए, ये लिया पेन और ये जी को हटा दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नीचे लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से इसको कंपेयर करता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, एक्स tan थीटा बाहर आता है, तो यहाँ बाहर कौन है, रूट 3x, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो tan थीटा की वैल्यू भी रूट 3, राइट। हमें पता चल गया tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 मींस थीटा इज इक्वल टू 63 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। हम सबको ही पता है tan थीटा की tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। आफ्टर दैट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, राइट, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तो नीचे वाला जो भी है वो क्या है, वो रेंज है, तो रेंज मिल गई हमें 2√3 डिवाइड बाई जी मीटर। ओके, इस तरह से हमने रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिंपली हमने क्या किया, देखो जो भी इक्वेशन दिया है ना, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो कि वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के किसी फॉर्मूला की तरह दिखने लगे, राइट। दैट्स इट, इतना ही किया हमने और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने पढ़ा है उसको कैसे डिराइव किया था, उसका बेसिक डेरिवेशन स्टेप यहाँ पर यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप
बेसिक फंडा सीखने वाला है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A ball is projected from a certain point on a surface of a planet at a certain angle with horizontal surface। यानी कि क्या कर दिया, एक बॉल है उसको क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल से किसी एक सर्टेन एंगल पर क्या कर लिया, प्रोजेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ठीक है। The horizontal and the vertical displacement x and y varies with the time t in seconds as x is equals to 10 root 3t and y is equals to 10t minus t square। देखो सिंपली x is equals to 10 root 3t है ना, and यानी कि x कोऑर्डिनेट टाइम के फॉर्म में दिया है एंड y कोऑर्डिनेट भी टाइम के फॉर्म में दिया है। करना क्या है, आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करने के लिए हम क्या करना है, y और x में रिलेशन लिखना है, यानी कि कॉमन टर्म को एलिमिनेट करना है, और यहाँ कॉमन टर्म कौन है, टाइम है। तो एक से टाइम निकाल के दूसरे में डालोगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या फाइंड करनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की हेल्प लेकर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से आ सकती है। इनिशियल वेलोसिटी, जब आपको रेंज मिल गई है तो इनिशियल वेलोसिटी भी इजीली फाइंड किया जा सकता है। आफ्टर दैट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब आपके पास सारे पैरामीटर्स आ गए तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फाइंड करना है, ठीक है। अब लोगों को पता है कि एक पार्टिकल जो होता है वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो। वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिलेगी। कि हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, dx by dt या dy by dt। वाई डायरेक्शन के लिए dy by dt आएगा। जस्ट उसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे, हम vy इज इक्वल्स टू 0, तो हमें टाइम मिलेगा। उस टाइम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसी फॉर्मूला में फिर से वो टाइम रख लो तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करना है। तो देखो पहली इक्वेशन लिखी है क्या, x इज इक्वल्स टू 10 रूट 3t, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी, सेकंड इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल्स टू 10t माइनस t स्क्वायर, राइट। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन टर्म को एलिमिनेट करना है, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉमन टर्म क्या है, टाइम। तो फर्स्ट वाले से टाइम, टाइम की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन 10 रूट 3 को निकालो और डाल दो इस सेकंड वाली इक्वेशन में। तो क्या मिलता है हमें, y इज इक्वल्स टू 10 t की जगह आ जाएगा x अपॉन 10 रूट 3 माइनस यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, एक्स अपॉन 10 रूट 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है। देखो कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने, 10 से 10 काट दिया। 10 से 10 काटने के बाद मैं दोनों इक्वेशन से एक्स अपॉन 10 रूट एक्स अपॉन रूट 3 को कॉमन ले लेता हूँ, मुझे मिलता है वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 रूट 3, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाइड हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल गई, ओके। एक्चुअली ये भी वही है, 10 से 10 कैंसिल कर लो तो हमें आंसर मिल गया। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी ऑप्शन में हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट बी एंड सी ऑप्शन हम लोगों को सॉल्व करना है। बी एंड सी में हमें पूछा गया था हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ये दो चीजें पूछी हुई थी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, देखो ये बाहर x के साथ ये एक मल्टीपल है, अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन समथिंग है, मतलब y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x यहाँ पर भी है, tan थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है 1 बाय रूट 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। इसके लिए आता है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो हमें मिल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, इस चीज को कंपेयर करते हैं तो r की वैल्यू हमें मिल रही है 100 रूट 3 एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके वेरियस पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पीसी हो चुका है, टी है इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद मैक्सिमम हाइट अटेन। एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। क्या करें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ।
तो मुझे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिल जाता है, और टी की वैल्यू जीरो डाल देता हूँ। टी की वैल्यू जीरो डाल देता हूँ, मुझे इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। अब मुझे और क्या चाहिए, हो गया बस। तो और भी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर हमने किस तरह से फाइंड किया है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, वो सिंपल काइनेमेटिक्स वाला तरीका था, लेकिन क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसके फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से याद रखना है, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला से भी फाइंड किया है। R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, वैल्यू रख लो, सारी वैल्यू तो पता है, थीटा पता है हम लोग को। ठीक है, 30 डिग्री है वो, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बन जाएगा अपॉन जी। आर की वैल्यू 100√3 होगी, या यू स्क्वायर, और यहाँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइड बाई जी। ओके, जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10√10। दिस इज द आंसर। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट अटेन। तो मैक्सिमम हाइट पर हमेशा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है, ये बात हमें पता है, इसलिए हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो अब उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई dt करते हैं, तो हमें मिलता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, राइट। y इज इक्वल टू, वहां पर था 10t माइनस टी स्क्वायर, तो वो बनेगा क्या, 10 माइनस 2t। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलेगा, और ये vy जो है y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, टाइम मिला, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड था, तब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर था। ओके, तो अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट होता है 10t माइनस टी स्क्वायर, तो वहीं पर t की वैल्यू 5 डाल दो, तो हमें मिल रहा है क्या, h इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, राइट। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 25 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट इज 25 मीटर। पार्टिकल 25 मीटर की मैक्सिमम हाइट अचीव करता है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने बहुत अच्छे से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को देख लिया है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको अच्छे से उसको देखना होगा, अच्छे से लर्न करना होगा। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आए, तो लेक्चर के बाद आप इस लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिएगा, राइट। Okay, so let us talk about the horizontal projectile motion. Horizontal projectile motion क्या होता है? Actually ये example of projectile from a tower है, right? यानी कि it is an example of projectile from a tower. So टावर के ऊपर से हमने बॉल को फेंक दिया। अब फेंकने के भी तरीके होते हैं, उसको किसी एंगल पर फेंका। यदि उसको किसी एंगल पर फेंकूंगा तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यदि मैं उसको क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टली सीधा सीधा फेंक देता हूँ। हॉरिजॉन्टली सीधा सीधा जब हम उसको फेंकते हैं, देन इट विल बिकम द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है, if a particle is projected horizontally from a height above the ground, then its motion is called horizontal projectile motion। ठीक है, अब इसके वेरियस पैरामीटर्स को हमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है, इसके वेरियस पैरामीटर्स को हमें स्टडी करना है। हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बारे में सेपरेटली बात करनी होगी। एक्चुअली मैं डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिख के भी कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर वेक्टर फॉर्म थोड़ा हाई लेवल लगता है, हम मेडिकल वाले हैं, थोड़ी तो दया करो। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले सेपरेटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को लिख लिया, और फिर उनको वेक्टर फॉर्म में डाला। ओके, वेक्टर फॉर्म में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि वेक्टर आपको बहुत जगह आता है, और वेक्टर फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस इजी बन जाता है। ठीक है, तो एक बार वेक्टर्स को अच्छे से सीखना होता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux इज इक्वल्स टू u। देखो डायग्राम में देख सकते हो, ये पार्टिकल है ना, इसको सीधा सीधा फेंका हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में, तो ux की वैल्यू किसके बराबर हो गई, u के बराबर हो गई। ठीक है, आफ्टर दैट acceleration in x direction, why there is no gravity in horizontal direction, no air resistance in horizontal direction। इसका मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि ये वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में हमें पता है पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ui इज इक्वल्स टू जीरो।
आफ्टर दैट हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है हमेशा डाउनवर्ड लगती है, क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसीडर किया, तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव वाई एक्सिस कंसीडर करना होगा। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लूं तो, अरे कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां मैंने माइनस लगाया है वहां आपको प्लस लगाना होगा, आंसर सारा सेम ही आएगा। ठीक है, सारे साइंस जो होंगे वो यदि आप सही से रखते हो तो आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, चाहे आप नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, यानी कि वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल को सीधा सीधा फेंका था। Acceleration in y direction ay is equals to g downward. Obviously acceleration due to gravity is downward. Okay, अब मैं क्या करता हूँ, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी इज u वेक्टर इज इक्वल्स टू ux I कैप प्लस uy j कैप। जस्ट ux और uy की वैल्यू रख लो, ये देखो ux की वैल्यू ये रही, uy की वैल्यू ये रही। u वेक्टर इज इक्वल्स टू ux I कैप प्लस uy j कैप, तो हमें क्या मिलेगा, u वेक्टर इज इक्वल्स टू u I कैप। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जीरो है, एंड वाई डायरेक्शन में जी डाउनवर्ड है, यानी कि माइनस जी जे कैप। तो मैं बोलूंगा कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ रख लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वैल्यू रखने पर मुझे मिलता है क्या, माइनस जी जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी आई आई कैप एंड एक्सेलरेशन आया माइनस जी जे कैप। तो ये वो बेसिक पैरामीटर्स हो गए, अब हमें आगे इसको डिस्कस करना होगा, राइट। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो यहाँ देखो डायग्राम में देख सकते हो, पार्टिकल को सीधा सीधा फेंका, लेकिन वो सीधा सीधा थोड़ी ना मूव करेगा, नीचे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, तो पार्टिकल इस तरह से कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ जब वो नीचे जा रहा है, तो बीच में किसी टाइम टी पर, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो है v। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, हमें पता है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब vx is equals to ux is equals to u, that is always and always constant, right। और y डायरेक्शन में ऑब्वियसली y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। बट जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, तो टाइम के साथ साथ वो वेलोसिटी गेन करता जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस इक्वेशन में वेलोसिटी एट एनी टाइम t t is equals to u plus at, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं v is equals to u plus at। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, v की वैल्यू दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक vx होता है, एक vy होता है। ठीक है, तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, u, x डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट है वेलोसिटी, एंड vy is equals to minus gt। एक्चुअली u plus at आना चाहिए था, पर u y डायरेक्शन में क्या था, uy जीरो था, जीरो माइनस gt। ठीक है, हमें मिलता है माइनस gt। ठीक है, vx मिल गया, vy मिल गया, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, वैल्यू रख लो, तो v is equals to u i कैप माइनस gt j कैप। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया बेसिक, लाइक ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, या तो यहाँ पर मुझे पेन की जरूरत है, मैं पेन यूज करता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो यदि कोई पूछ ले व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट। और एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे लिखने में थोड़ी मेहनत लग रही है, मेरे पास पेन टैब नहीं है, अभी मैं माउस से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बाद में ये सब कुछ स्मूथ हो जाएगा जब मेरे पास पेन टैब आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। देखो वी एक्स कहाँ से आएगा, एक्स तो ये रहा क्या, q, और वी वाई क्या हो गया, gt। बस यहाँ पर रख लो तो हमें क्या मिलेगा, q स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं फिर से लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, क्या आ गया लेजर पॉइंटर। अब यहाँ पर हमें बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देखो डायरेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है
कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये कुछ एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, एक ट्राइंगल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो देखो कैसे आएगा। इस तरह से हमने देखा है वेक्टर्स में इसी तरह से लिखते हैं। देखो ये vx हो गया x कंपोनेंट, ये vy हो गया y कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी v हो गई, क्योंकि ये रहा डायगोनल, सॉरी हाइपोटेनियस या, और जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। तो बस हमने पढ़ा था tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज vy एंड बेस इज vx। तो vy की वैल्यू से मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो vy की वैल्यू है gt एंड vx की वैल्यू है u। तो हमें मिल गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy अपॉन ux, so vy अपॉन vx, so that will be equal to gt upon u। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करना है ना, इनवर्स ले लो इसका, तो हमें मिलता है अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स gt अपॉन u। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत ही सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम बना के प्रॉपर्ली यदि आप समझते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसी वीडियो को आप रिपीट करके भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट हम किससे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ठीक है, तो अब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में कर रहा हूँ, राइट। तो u एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है, और ये टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा एंड वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स बोल देता हूँ एंड वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं वाई बोल लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यू की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे मिलता है यू इंटू टी, सिंपल। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं y डायरेक्शन की बात करता हूँ, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई की वैल्यू जीरो होती है, जीरो होती है, मतलब ये टर्म तो गायब हो गई, अब बचा सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं माइनस जी लिख सकता हूँ, तो यहाँ मुझे मिल रहा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इक्वेशन ये हमें मिल गई कि s इज इक्वल टू व्हाट, यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। कैसे मिला, s वेक्टर इज इक्वल्स टू x आई कैप, एक्चुअली प्लस y j कैप लिख सकते हैं, पर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए मैंने y डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है s इज इक्वल्स टू u t i कैप माइनस हाफ g t स्क्वायर j कैप। ओके, दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को जब भी फाइंड करना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वाई डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, याद रखना, जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो आप वाई डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। okay? तो चलो वाई डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता है y इज इक्वल्स टू क्या, माइनस जी। कब पार्टिकल ने एक टावर से स्टार्ट किया, यदि ये टावर से स्टार्ट कर रहा है तो ये वाला नीचे जो है ये ग्राउंड है, तो टावर से स्टार्ट करने के बाद जाके ऐसे नीचे गिर रहा है। तो जब ये नीचे गिरता है मतलब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल एंड हो गई, तो वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो है टाइम ऑफ लाइट। जो भी टाइम उसको एच हाइट पार करने में लग रहा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं बोलूंगा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एच, एक्चुअली हाइट ऑफ द टावर के बराबर ही तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, है ना। एक्स डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो हमेशा वाई डायरेक्शन को ही देखना होगा। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस एच। अब आप बोलोगे सर माइनस एच क्यों, प्लस एच क्यों नहीं, अरे प्लस भी मिल सकता है। यदि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो y की वैल्यू आपको मिलती प्लस एच, और g की वैल्यू भी प्लस जी लिखते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने माइनस एच लिखा है। ओके, देखो आपको नहीं पता चल रहा हो तो पीछे वाले डायग्राम में जाके बता सकता हूँ। देखो पार्टिकल ये रहा, यहाँ से आके यहाँ पर गिरेगा फाइनली, तो पार्टिकल ऐसे है तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, इस टावर के हाइट के बराबर है। ये मैंने लिखा है। ठीक है ना,
हम लोगों को पता चल गया y इज इक्वल्स टू माइनस एच। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एच, हमें पता है y कोऑर्डिनेट क्या होता था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पीछे ही तो लिखा था। ये देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y की वैल्यू रखनी है आप माइनस एच, ठीक है ना। जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली लिख लो यार, सिंपलीफाई करके कि t इज इक्वल्स टू रूट टू एच अपॉन जी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि किसी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप करते हैं तो उसको नीचे गिरने में टाइम लगता है रूट टू एच अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी टाइम उतना ही लग रहा है। देखो एक्चुअली वाई डायरेक्शन में क्या है, फ्री फॉलिंग ही तो है। तो फ्री फॉलिंग जब भी पार्टिकल करता है तब टाइम ऑफ लाइट होता है रूट टू एच अपॉन जी। वही आंसर यहाँ पर भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल जब जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चलता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग देखते हैं, ये आर देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। लेट्स मूव। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज इक्वल्स टू यू इनटू टी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आर के बराबर होगी, यू तो यू है ही, कांस्टेंट है। अब टी, टी क्या लिखेंगे, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम ऑफ लाइट के बराबर लग रहा है, तो भाई वही तो बात है, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आने में उसको टाइम ऑफ लाइट के बराबर टाइम लगा। स्मॉल टी की जगह डालना होगा कैपिटल टी, यानी कि रूट टू एच अपॉन जी। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x इज इक्वल टू q इनटू t, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम डालते हैं इसमें तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू r। जब भी t इज इक्वल टू कैपिटल T होगा तो x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर होगी, ठीक है। बस वैल्यू रख लो, r इज इक्वल टू u इनटू t। तो t की वैल्यू हमें पता ही है रूट टू एच अपॉन जी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज का जनरल फॉर्मूला मिल गया, r इज इक्वल टू u रूट टू एच अपॉन जी, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी विथ व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल को आपने फेंक तो दिया, सीधा सीधा जा रहा है और फिर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एक्सेलरेट होता जा रहा है, तो नीचे की तरफ भी वेलोसिटी गेन करेगा और फाइनली ग्राउंड में जाके टकरा जाएगा, आएगा और फाइनली टकरा जाएगा। जब वो टकरा रहा है तब उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, वो हमें फाइंड करना है। तो यार हमें पता है वाई डायरेक्शन में तो फ्री फॉलिंग कर रही है, तो जब भी कभी फ्री फॉलिंग होती है तो हम बोल सकते हैं फ्री फॉलिंग के वक्त v इक्वल्स टू जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जी एच होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली सॉल्व भी मैंने कर रखा है, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। अब क्या करोगे, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू रखो। हम सबको पता है वी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, u होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू u। आफ्टर दैट वर्टिकल वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो क्योंकि वर्टिकल में h हाइट नीचे आ रहा है तो मतलब इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सी, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यूज करेंगे तो मुझे मिलता है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू जीरो होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टू ए की वैल्यू माइनस जी और एस की वैल्यू माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो वी वाई की वैल्यू रूट टू जी एच। देखो मैंने पहले ही बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या ली, नेगेटिव ली, तो इसलिए जी भी नेगेटिव और एच भी नेगेटिव, तो दोनों माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। यदि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते तो यहाँ पर प्लस जी आता और यहाँ प्लस एच आता तो भी पॉजिटिव आता। तो बेसिकली आप नीचे की डायरेक्शन को चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, आपका सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। हेंस वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, यू आई कैप प्लस रूट टू जी एच जे कैप, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, तो यहाँ वी एक्स की वैल्यू यू है तो यू आई कैप आ गया, एंड वी वाई की वैल्यू रूट टू जी एच आई है तो वो रख ली यहाँ पर, तो रूट टू जी एच जे कैप हो गया, ओके। तो हमसे पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल यदि हम लोगों को फाइंड करना है तो हम जानते हैं स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। Vx की वैल्यू u है, रख ली,
dy की वैल्यू रूट टू जी एच है, वो भी रख ली, तो हमें स्पीड मिल गई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस रूट टू जी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली मुझे मिल गई स्पीड एट एनी टाइम थी, सॉरी स्पीड while hitting the ground या while when the particle strikes the ground। ठीक है, तब की स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसके बाद? ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन है, हम डेरिवेशन ही कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद आ गई कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। भाई देखो, सिंपल तरीका है, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखा था, द सेम वे वी नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन of equation of trajectory of the particle here। so what is that? x is equals to ut, x is equals to ut हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, एंड y is equals to माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोगों ने लिखा था पहले भी, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में डाल दो, तो y is equals to हाफ जी, और ये t की जगह मैं डाल दूंगा x अपॉन u, तो ये मुझे मिल गया y is equals to माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिला, एक्चुअली ये माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला मिला है। ठीक है, तो ये भी एक पैराबोला ही होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर द पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। देन आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो आप इस लेक्चर को बाद में रिपीट करके देख सकते हैं, अच्छे से आप 2-3 टाइम्स को देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एक इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। बॉल is thrown horizontally with a speed of 98 meter per second from a hill of height 490 meter. Find the time taken to reach the ground, horizontal distance covered by it before reaching the ground, and speed with which it hits the ground। ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, टाइम टेकन फाइंड करना है, बाद स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, ये तीन चीज फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद है, वैसे तो नहीं भी है तो हम कर ही सकते हैं डिराइव, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। तो टाइम टेकन हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है, फ्री फॉलिंग वाला टाइम होता है, यानी कि अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी डाल देंगे, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू, एच की वैल्यू है 490 मीटर और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर 9.8 कब रखना है, 10 कब रखना है। या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या वैल्यू रखनी है, यदि नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेशन किससे इजी फील होती है, वो वाला वैल्यू रखना है। देखो, ऊपर 49 दिख रहा है, नीचे मुझे डेफिनेटली 9.8 रखना चाहिए, क्योंकि 49 का डबल 98 होता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर 10 मिलता है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमें 10 सेकेंड मिलता है, यानी कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद जमीन पर पहुंचने में उसको 10 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, r इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू होगी u, टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी हमें मिला है 10 सेकेंड्स, राइट। तो वैल्यू रख लेते हैं, u इज 98 एंड टाइम t is 10, तो हमें मिल रहा है 98 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। नेक्स्ट, स्पीड while हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि जब पार्टिकल जमीन को टकराता है तब उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, t की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रख लो, तो हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हमें पता था vx इज इक्वल्स टू u होता है, तो यानी कि फाइनली भी u ही रहेगा vx। के बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, एंड दैट इज माइनस जी टी, तो माइनस जी इंटू टाइम ऑफ लाइट, तो वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लगाते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, वी एक्स एंड वी वाई मिल जाता है। यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं डायरेक्टली, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्या है, ये है व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड। ठीक है ना, तो x डायरेक्शन के लिए u है, तो ये आ गया u स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन के लिए क्या है, रूट टू जी एच है, तो वो डाल दिया। हमें मिल रहा है u स्क्वायर प्लस रूट टू जी एच का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज जैसे ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है 98 रूट टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हमें मिला व्हाट, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी हम लोग सीख गए अच्छे से।
नेक्स्ट question number 7. A bomb is released from an aircraft flying horizontally with a speed of 200 meter per second at some height from the ground. ग्राउंड से कुछ हाइट पर एक एयरक्राफ्ट है जो 200 मीटर पर सेकंड से चल रहा है हॉरिजॉन्टल में. ओके, अब क्या कर दिया? If the bomb destroys a terrorist camp at a horizontal distance of 1600 meter from the point of projection. चलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर से प्लेन उड़ रहा है और उसने पार्टिकल को गिराया है, बॉम्ब को गिराया. बॉम्ब को जैसे ही गिराया तो वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, यहाँ पर टेररिस्ट कैंप को उड़ा देगा. ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 1600 मीटर, राइट. तो हमें फाइंड करना है क्या कि हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. हमें सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रहा है? हमें रेंज दिखाई दे रही है, वो 1600 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, आर इज इक्वल टू यू रूट टू एच अपन जी होता है, तो डायरेक्टली इसमें डाल देते हैं वैल्यू. आर इज इक्वल टू 1600, यू की वैल्यू है 200, रूट टू एच, एच फाइंड करना है, जी की वैल्यू 9.8 या 10, जो भी इजी कैलकुलेशन हो वो डालना है. तो यहाँ से हमें मिल रहा है एच इज इक्वल टू 320 मीटर. ओके, सो विल गेट द आंसर एच इज इक्वल टू 320 मीटर्स. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. देखो साफ साफ डायग्राम में देखकर ही लग रहा है कि एक बड़ा बिल्डिंग है, एक छोटा बिल्डिंग है. फर्स्ट बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका, वो सेकंड बिल्डिंग की विंडो में जाके गिरा. ठीक है, सारी हाइट्स दे रखी हैं, डिस्टेंसेस दे रखी हैं, और हम लोगों को फाइंड करना है क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि किस हॉरिजॉन्टल स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया वो फाइंड करना है. ओके, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कितना नीचे गिर रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ठीक है, two tall buildings are at a distance of 180 meters. देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 मीटर है. From each other an object is thrown horizontally. एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका. ठीक है, from a window of one of the building 55 meter above the ground. एक बिल्डिंग का विंडो जो है वो 55 मीटर अबव है, राइट. वहां से हमने पार्टिकल को फेंका है टू द अदर बिल्डिंग having a window at a height 10.9 मीटर. तो यानी कि ये जो हाइट दिखाई दे रही है 10.9 मीटर है. ठीक है, तो पार्टिकल कितना नीचे फॉल किया? तो वो 55 माइनस 10.9, तो हमें मिल रहा है 44.1 मीटर. यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट, यदि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूं तो मुझे मिलता है द डिस्प्लेसमेंट माइनस 44.1 मीटर, है ना. यहाँ पर मुझे मिल गया 44.1 मीटर, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है. तो बस यूज करो इसको. और क्या दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि रेंज दिखाई दे रही है. रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर सकते हैं. पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं. टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी. वैल्यू रखो यहाँ पर 2 इंटू रूट 44.1 डिवाइड बाई 9.8, तो हमें 3 सेकंड मिल रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पर इंटीजर 3 मिल रहा है, तो इसलिए मैंने 9.8 रखा है. तो आर रेंज, क्या मिलेगी? रेंज होती है u इंटू टी. ठीक है, u की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो पता नहीं है फाइंड करनी है, बट हमें रेंज पता है. रेंज है 180 मीटर, तो ये 180 मीटर यहाँ रख लिया. इज इक्वल्स टू u इंटू टी. टी की वैल्यू 3 सेकंड आई थी. जैसे वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते हैं, u इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड मिलता है. यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिस्कस कर लिया, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी डिस्कस कर लिया. नाउ विल डिस्कस द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर. तो उसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ किसी एंगल पर फेंका या फिर हॉरिजॉन्टल से किसी नीचे की तरफ एंगल पर फेंका. तो पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर. ठीक है, तो डायग्राम में आप देख सकते हो एच हाइट का एक टावर है. यहाँ से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया. वो इस तरह से कर्व पाथ फॉलो करता है और फाइनली ग्राउंड पर जाकर गिरता है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, दैट इज रेंज. ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नीचे की तरफ को नेगेटिव मान रहा हूँ, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, दैट इज माइनस एच. ओके, चलो देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, u cos थीटा एंड u sin थीटा. तो x कंपोनेंट ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा हो गया, y कंपोनेंट uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा हो गया. ठीक है,
नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ए एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको हमें माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मुझे मिल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, एंड एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन इज माइनस g j कैप, दैट्स इट। ये हमें क्या मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। अब हम इसके बाकी के पैरामीटर्स सिंपली कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, जब भी किसी t टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v is equals to u plus at। यहाँ पर मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ v is equals to u plus at फॉर x डायरेक्शन एंड फॉर y डायरेक्शन। सेपरेटली x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन के लिए हम v is equals to u plus at यूज करते हैं, ठीक है। तो vx is equals to ux plus ax t, x की वैल्यू जीरो है वैसे भी, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ux। और हमें पता है यार एक्स डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। vx is equals to u cos theta एंड vy is equals to uy minus dt। यहाँ पर मैंने रख लिया uy की वैल्यू u sin थीटा, है ना, ये देखो ये uy u sin थीटा, vy is equals to u sin थीटा minus gt मिल गया, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। x और vy की वैल्यू डाल दो, ठीक है। डालने के बाद उसको रीअरेंज करो, यानी कि i कैप का मल्टीपल एक साथ एंड j कैप का मल्टीपल एक साथ। तो जब भी हम i कैप एंड j कैप के मल्टीपल्स को ऐसे सेपरेटली रखते हैं, i कैप के मल्टीपल एक साथ एंड j कैप के मल्टीपल एक साथ, तो हमें ये वाली टर्म मिलती है, v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी डी जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है उस टाइम t पर, है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, ये इस तरह से है ऐसा, तो किसी टाइम टी पर ही इस तरह से है, तो मैं इसको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि ट्राइंगुलर फॉर्म में हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। यहाँ पर कर लेता हूँ मैं ड्रॉ, सॉरी। ये एक वेक्टर हो गया वी एक्स, नीचे की तरफ हो गया वी वाई, एंड ये वाला हो गया v, ठीक है। और इस एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वही किया हमने, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि vy बाय vx, ये यूज करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाय vx, vy की वैल्यू है u sin थीटा माइनस gt, एंड vx की वैल्यू जो है वो है u cos थीटा, यहाँ पर रख ली, ये मिला। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स ले रहे हैं ताकि हमें एंगल मिल पाए, तो alpha is equals to tan inverse u sin theta minus gd divided by u cos theta. That's it. So this is the value of angle, right? Angle made by velocity at any time. Okay? तो स्पीड पूछ ले तो क्या करेंगे, स्पीड पूछ ले तो ये vx दे ही रखा है, vy दे ही रखा है, तो v is equals to under root of vx square plus vy square. That's it. You will get the answer. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर लिया हमने, प्रोजेक्ट कर लिया तो पार्टिकल जा रहा है, तो पार्टिकल जा रहा है तो किसी भी टाइम t पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। जब भी हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सेपरेटली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मैंने x बोल दिया, y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मैंने y बोल दिया। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया vx into t, राइट, हमने पीछे देखा था ना x कोऑर्डिनेट, पीछे, है ना।
तो वैसे के वैसे ही है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ मिल गया x इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी, तो यू कॉस थीटा इंटू टी। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं तो y इज इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है y इज इक्वल्स टू यू आई मतलब यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, y is equals to UIT is equals to u sin theta into t minus half gt square, ठीक है। ये y है, ये x है, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं xi क्या प्लस y j क्या। x और y की वैल्यू डालें तो हमें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, s वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos थीटा into t i कैप प्लस u sin थीटा into t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। आई कैप के सारे मल्टीपल्स एक साथ रख लिए और जे कैप के सारे मल्टीपल्स एक साथ रख लिए, ठीक है। यही सिंपल वे है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन हमने करवाई है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अब मुझे बताना है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। देखो ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे डिफरेंट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो फिर ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके सामने है व्हेन द पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड एट t is equals to capital T its displacement is h downward, है ना। तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल को टावर से फेंका, ऐसे जा रहा है, ऊपर जाके वापस नीचे आया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यार ये पार्टिकल था, ये ऐसे जाके ऐसे आया, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ये इनिशियल ये फाइनल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वही होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सॉरी, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर होगा, और क्योंकि वो डाउनवर्ड है इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट जो होता है वो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। और अभी अभी मैंने बताया कि जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम लिख सकते हैं माइनस h। क्यों? कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की इसलिए माइनस, और बिल्डिंग की हाइट के बराबर ही उसका डिस्प्लेसमेंट है इसलिए हमने लिखा, ठीक है। तो अब टाइम, इस टाइम की जगह हम डाल देंगे टाइम ऑफ लाइट। y की वैल्यू h कब है? जब t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इनटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैपिटल टी की फॉर्म में। यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स मिलते हैं। टू रूट्स में से एक रूट पॉजिटिव होगा एंड दूसरा रूट नेगेटिव होगा, और हम जानते हैं टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हमें पॉजिटिव रूट को एडप्ट करना होगा। सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई फॉर्मूला यूज करके ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कर तो सकते हैं, आपको इनिशियल वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक आपने टाइम निकाल लिया, फिर मैक्सिमम हाइट से जमीन तक टाइम निकाल लिया, बहुत मजदूरी करनी पड़ेगी, मैक्सिमम हाइट भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत मजदूरी होनी करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली क्या करो, वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज करो, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करो, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। दो रूट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आंसर इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट्स इट, इतना सिंपल था। आगे सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आता है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। कोई भी पार्टिकल है उसको यदि प्रोजेक्ट किया तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करता है। हम सभी को पता है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव करता है तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया क्या, कि कोई पार्टिकल है, यदि मैं यहाँ पर पॉइंटर यूज करता हूँ, कि कोई पार्टिकल है और हमने क्या किया, को प्रोजेक्ट किया तो वो इस तरह से जाएगा और फिर जमीन पर आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ तक से यहाँ तक की हाइट, तो ये वाली तो बिल्डिंग की हाइट के बराबर, तो ये वाला देखो हम बोल सकते हैं क्या,
कि भाई देखो, यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो ये कैसा दिखाई देता है कि सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए जो हाइट होती है ना, ये क्या होती है, यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। तो वही चीज मैंने यूज की है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड यदि फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करो, ये वाली हाइट फाइंड करो, यानी कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टावर डिवाइड बाय हाइट ऑफ सॉरी प्लस हाइट ऑफ टावर, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एच प्लस स्मॉल एच, ओके। पीछे मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है डायग्राम के अंदर, देखो दिखाते हैं आपको। या देख सकते हो, मैक्सिमम हाइट मतलब ये टोटल हाइट, हाइट ऑफ टावर प्लस मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, दोनों को ऐड करोगे तो मैक्सिमम हाइट अचीव फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। यस, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एच इज इक्वल्स टू एच मैक्स, सॉरी एच मैक्स इज इक्वल्स टू एच प्लस स्मॉल एच, है ना। तो एच की वैल्यू हमें पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी होती है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर प्लस हाइट ऑफ द टावर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगी, ठीक है। विल गेट द आंसर, क्योंकि स्मॉल एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, बाकी सारे पैरामीटर्स भी दिए, विल गेट एच मैक्स। आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, पार्टिकल कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है, तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी। एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी होता है, राइट। तो जब टाइम t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट है, तब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेंज। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, x इज इक्वल्स टू कैपिटल R, राइट। क्या करो, इस वाली इक्वेशन में x की जगह कैपिटल R डाल दो, u cos थीटा इनटू कैपिटल T, स्मॉल t की जगह कैपिटल T डालेंगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होगा, फिर यहाँ पर डाल सकते हो, तभी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट जरूरी है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हमने देख ली, किसके बारे में, इट इज ऑल अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इन अपर डायरेक्शन, ओके। सिमिलर चीजें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो देखो, यहाँ पर सारी चीजें वही है, कुछ अलग नहीं है, है ना। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखना है तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल को पहले तो ऐसे ऊपर फेंक रहे थे किसी एंगल पर, लेकिन अब पार्टिकल को किसी एंगल पर नीचे की तरफ फेंकना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच, पार्टिकल को नीचे, है ना, नीचे की तरफ यू वेलोसिटी से किसी एंगल हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक्स डायरेक्शन इधर मान लो, वाई डायरेक्शन पर मान लो, तो नेगेटिव वाई नीचे हो जाएगा, राइट। तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों आपको मिलेंगे, राइट। यानी कि आपके पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होने से रहा, वो तो हमेशा जीरो होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, राइट। इन चीजों को हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो चलो आ जाओ, देखते हैं इसमें। A particle is projected with velocity u from the top of the tower at an angle theta downward with the horizontal, and finally it hits the ground followed by projectile path as shown in the figure। देखो देख सकते हो कि इस तरह से और पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और ग्राउंड पे जाके टकरा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए पहले मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर लूं, वो कितनी है, देखो u है, u का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है u cos थीटा, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आ रहा है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि u sin थीटा डाउनवर्ड। ये एरो शो किया है, क्योंकि मैं आई कैप जे कैप नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एरो शो किया डाउनवर्ड, y is equals to u sin थीटा डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट में यूज कर सकता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो लिख लो डायरेक्टली। y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन,
यहाँ पर मुझे मिल गया ए वाई इज टू जी डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्या करूँ, मैं नेट वेलोसिटी लिख लूँ वेक्टर फॉर्म में। हम जानते हैं u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, दोनों वैल्यू रख लो। हमें मिलेगा u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ओके, ये हमें मिल गई इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल स्पीड पूछे क्या करोगे, इनिशियल स्पीड पूछे तो आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस यू वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमें कितना मिलता है, एक्सेलरेशन वेक्टर हमें मिलता है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू 0 है एंड ए वाई की वैल्यू माइनस जी जे कैप है। हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जी जे कैप, दैट्स इट। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, राइट। तो हम आगे फाइंड करना है कि किसी भी टाइम टी पर क्या होगी उस पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यार वही एक ही तरीका है, v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। v इज इक्वल्स टू u प्लस a टी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t v इज इक्वल्स टू u प्लस a टी लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करें, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को एक साथ भी डील कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। पर जैसा कि मुझे लास्ट क्लास के फीडबैक में बच्चों ने बोला है कि सर थोड़ा हाई लेवल हो गया। एक्चुअली आईआईटी में उसी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन नीट के लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ा सेपरेट सेपरेट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में क्या होता है, क्या vx, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो vx is equals to ux is equals to u cos theta, that's it, कांस्टेंट है ना। y डायरेक्शन की बात करते हैं तो y डायरेक्शन में हमें पता है uy प्लस ayt है ना। अब uy नीचे की तरफ है, यानी कि u sin थीटा नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस u sin थीटा ये कैप लिखेंगे, है ना। और एक्सेलरेशन माइनस gt माइनस जी जे कैप है। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन आल्सो नेगेटिव, तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो ये माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे मिल रहा है क्या, यू साइन थीटा प्लस जी टी, या माइनस यही बाहर रहा है। फाइनली मैं वेलोसिटी को क्या बोल सकता हूँ, देखो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल रही है माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, एक्स डायरेक्शन की u cos थीटा, बस v is equals to vx i cap plus vy j cap, यहाँ रख लो तो u cos थीटा i cap माइनस u sin थीटा प्लस gt j cap। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, i cap के मल्टीपल को एक साथ रखा, j cap के मल्टीपल को एक साथ रखा, तो you will get the value of velocity, और इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो तो आपको मिल जाएगी स्पीड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल था, जो पार्टिकल था, उसको हमने प्रोजेक्ट किया तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है वो बताना है। हम लोगों को पता है यार, हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो इसको मैंने लिख लिया वी एक्स, इसको मैंने लिख लिया वी वाई, और ये आ गया वी। वी एक्स है हमारे पास, वी वाई है, वी है, ट्राइंगल बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई की वैल्यू ये दी की रही है, वी एक्स की वैल्यू ये है। एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड डाल देते हैं ताकि हमें अल्फा मिल जाए, है ना। अल्फा हमने एक्यूट एंगल लिया है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा, u sin थीटा प्लस gt डिवाइड बाय u, tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस gt डिवाइड बाय u cos थीटा, राइट। उसकी वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, तो फाइनली एंगल हॉरिजॉन्टल से हमें मिलता है u सॉरी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स u sin थीटा प्लस gt डिवाइड बाय u cos थीटा। ठीक है, एक्चुअली आपको ये फॉर्मूलाज इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रखते हैं तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। जो भी पार्टिकल है यदि उसको प्रोजेक्ट किया तो वो जैसे भी है वो मोशन करेगा और फिर फाइनली जाकर ग्राउंड पर, है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी
डिस्प्लेसमेंट जब हमें फाइंड करना है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं मोशन की इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेपरेटली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो x डायरेक्शन के लिए आएगा x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल टू ux इंटू टी, है ना, यानी कि u cos थीटा इंटू टी, ये आ गया। ठीक है, तो y डायरेक्शन की बात करते हैं तो y डायरेक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं vy वाई इंटू टी माइनस हाफ, सॉरी, y इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी, और वी वाई टी को एक्चुअली यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, इसको हटा सकते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वी वाई की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे मिलता है क्या, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं ना। तो फाइनली हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज x I कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये टोटली हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू हमें मिलेगा u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल फंडा फॉलो किया है, x के कंपोनेंट को एक साथ यानी कि आई कैप के मल्टीपल को एक साथ और y कंपोनेंट्स को एक साथ यानी कि जे कैप के मल्टीपल्स को एक साथ रखा। ठीक है, सिंपल। आगे हमें फाइंड करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है टावर से के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो हमें हमेशा एंड हमेशा वाई डायरेक्शन को देखना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट एच, एक्चुअली वो डाउनवर्ड है इसलिए हम माइनस एच लिखेंगे। और वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, वो यूज कर रहे हैं। y is equals to minus u sin theta into t minus half gt स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये u v by t लिखा है ना मैंने, माइनस हाफ gt स्क्वायर भी आना चाहिए एक्चुअली। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो y is equals to minus u sin theta into t minus half gt स्क्वायर, ये करेक्ट है। ठीक है? ये आप नोट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्या चीज नहीं लिखनी है वो बता देता हूँ, ये चीज गलत है। ठीक है, गड़बड़ है, पूरा नहीं लिखा मैंने इसलिए हटा सकते हैं इसको। ओके, तो फाइनली y is equals to minus u sin theta into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस h, क्योंकि h डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, अब माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह क्या लिखूंगा, कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लगता है तभी तो वो ग्राउंड पर पहुंचता है, राइट। वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम है, यहाँ कैपिटल टी डाल दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह कैपिटल टी। अब यहाँ पर हमें मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सी हियर माइनस हियर माइनस हियर माइनस, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था तो ये तीनों जगह माइनस आए, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे। कोई पूछे कि सर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता तो क्या होता, यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता तो यहाँ पर प्लस एच आता, यहाँ पर क्या होता, प्लस यू साइन थीटा इंटू टी आता, और यहाँ प्लस हाफ जी स्क्वायर, तो भी प्लस वाली इक्वेशन मिलती, राइट। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, इक्वेशन सेम ही मिल रही है, इसलिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, बात वही है, आंसर वही आना है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करते हैं यू विल गेट टू सॉल्यूशंस, वन विल बी पॉजिटिव अनदर विल बी नेगेटिव। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रियल रूट्स को आंसर एक्सेप्ट करना है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द पॉजिटिव रूट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो कितनी बार बोल चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज की जब भी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर लो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, है ना, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, अभी पीछे देखी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, तो y इज इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर आप लगा सकते हैं। ठीक है, या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कंसीडर करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
ओके, तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेसिक थ्योरी देखी, किस किस की देखी। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड जो भी था उसको हल्के से रिवाइज किया, मतलब बेसिक चीज हल्का सा फॉर्मूला देख कर आ गए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। तो अच्छे से समझने का मैंने जो भी क्वेश्चंस की इस प्रेजेंटेशन में दिए, इस लेक्चर में दिए हैं, आपको वो क्वेश्चंस बिना सॉल्यूशंस देखे फिर से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बाद हमने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर अपवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, और उसके बाद डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, ठीक है। ओके, जो कुछ भी हमने पढ़ा उस पे बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसकी छत से एक यू वेलोसिटी पर से एक 37 डिग्री एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। लेट्स सी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 11 मीटर a stone is projected with a speed of 10 meter per second at an angle 37 degree as shown in the figure. Find time of flight, horizontal range, speed at time t is equals to 2 seconds, maximum height attained by the particle, and last speed just before striking the ground, यानी कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होता है उससे जस्ट बिफोर कितनी स्पीड है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो मैंने पहले ही बोला था इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज करो, वो भी वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई वाली डायरेक्शन। वाई इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि अपवर्ड वाली मोशन है। y is equals to u sin theta into t minus half gt square, राइट। y की वैल्यू हम लिखेंगे हाइट के बराबर और नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो -11, राइट। u की वैल्यू तो ऑब्वियसली हमें पता ही है u sin थीटा, तो u की वैल्यू 10 sin 37 डिग्री इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रखते हैं sin 37 की, तो -11 इज इक्वल टू 10 इंटू 3/5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्व करने पर हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलती है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, -11 इज इक्वल्स टू 6t माइनस 5t स्क्वायर, राइट। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि फैक्टर्स हमें लेना आता है, तो सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमें टू सॉल्यूशंस मिलते हैं, कौन कौन से? एक सॉल्यूशन मिलता है -1 एंड दूसरा मिलता है t इज इक्वल्स टू 11/5। यार हम लोगों को तो पहले ही पता है टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू जो भी टाइम की मिली हमें एक्सेप्ट करना होगा, एंड दैट विल बी आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हियर इज 11/5 इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि u cos थीटा इनटू कैपिटल T, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास है, रखो और आंसर लाओ। तो देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है u की वैल्यू 10, cos थीटा की वैल्यू है 4/5, ठीक है। के बाद इंटू टी मतलब 11/5, एक्चुअली वो क्या था, 37 डिग्री एंगल था, cos 37 डिग्री इज 4/5, ठीक है ना। कैपिटल टी इज 11/5। जैसे इसको सॉल्व करते हैं 88/5 मीटर मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्ट है, ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज भी हमने देख ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था। थर्ड क्वेश्चन पूछा था स्पीड एट टी इज इक्वल्स टू 2। सिंपल यार, किसी टाइम टी पर स्पीड, राइट, हमने अभी अभी देखा था, तो सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी, टी की जगह तुम टाइम डाल दो, ये गेट द आंसर। मैं वही करने वाला हूँ। Vx is equals to u cos theta, x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, Vx is equals to ux is equals to u cos theta, वैल्यू रख रहा हूँ 10 cos 37 डिग्री, मुझे मिलेगा 10 into 4/5 is equals to 8 मीटर per second, right। यहाँ मुझे मिला the horizontal component of velocity is 8 meter per second, okay। next Vy, तो y डायरेक्शन के लिए भी हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो Vy is equals to uy minus gt, वही लगाने वाले हैं हम लोग। तो
यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो वी वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? हमें सॉरी वी वाई ही फाइंड करना है ना, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा यानी कि 10 sin 37 डिग्री माइनस 10 into t। ओके, तो यहाँ पर इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 10 into 3/5 माइनस 10 into 2 टू माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें पता चला कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो होगी -14 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। बस हो गया। तो हमसे कोई स्पीड पूछे, स्पीड इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ax स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में जो तो हमें फॉर्म वैल्यू मिल रही है, ये क्या मिल रही है, 8 मीटर पर सेकेंड एंड -14 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ डाल दो। अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है रूट ऑफ 264 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमसे पूछा होगा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट का पहले ही मैंने बोला है, प्रोजेक्टाइल की टॉप ऑफ द टावर से हाइट को टावर की हाइट से ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। यदि हम उसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस स्मॉल एच। ओके, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस स्मॉल एच। ओके, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक्चुअली 1.16 प्लस 11 यानी कि 12.16 मीटर मिल रहा है। यदि आप g की वैल्यू 9.8 रखते हो तो आपको मिलता है 12.8 मीटर, और यदि आप 10 रखते हो तो 12.16 मीटर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रहेगा उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, तो पार्टिकल को यदि हम लोगों ने इस तरह से किसी एंगल पर नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल किया, तो प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का सीधा फंडा है, r इज इक्वल्स टू यू cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देख सकते हैं हम लोग, ये है 11/5 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू डाल दूँ, ये मिलता है 10 cos थीटा को 4/5 इंटू 11/5, तो हमें मिल रहा है 88/5 मीटर। ठीक है, तो फाइनली हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गई, दैट इज 88/5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा होगा व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। तो बस जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, वैल्यू आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। एक्चुअली यहाँ पर बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यदि है तो एंड लगते हैं यहाँ पर माइनस माइनस यू साइन थीटा, राइट। ये गड़बड़ हो गया, इस पे इरेजर से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना था, एक माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई तो अब क्या करोगे नेक्स्ट, सिंपल वैल्यू रखो, आंसर लाओ। तो 10 sin 37 डिग्री माइनस 10t। ओके, ये वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखो ये माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आना चाहिए ना, तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, राइट। तो ये कितना हो रहा है, 12 into 2 20, एंड ये कितना आ रहा है 6। यहाँ पर एक्चुअली 26 मिलना चाहिए ना, ये जो मैंने 24 लिखा है यहाँ पर आना चाहिए -26 मीटर पर सेकेंड। ओके, -26 मीटर पर सेकेंड हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, वाई डायरेक्शन की स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो वो ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। इस जगह क्या डाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट डाला था, सिंपल, है ना। नेक्स्ट, स्पीड, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस, ये एक्चुअली मैंने लिख लिया, ये तो 26 स्क्वायर डालना। ठीक है, सॉल्व करके लिख देना, जो भी आंसर है वही आंसर है। ठीक है ना, तो 8 स्क्वायर प्लस 26
स्क्वायर और इस पूरे का रूट लेना है। कि रूट 264 इज नॉट द आंसर, यू नीड टू राइट द आंसर अगेन आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वापिस कैलकुलेशन करके लिखने जितना स्कोप मेरे पास नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस स्मॉल h, राइट। वैल्यू रख लो 8 स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर बाय 2g, राइट, प्लस h, तो यहाँ पर 12.16 मिल रहा है। ओके, तो ये है क्या एक्चुअली? वैसे देखा जाए तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई एम सॉरी, ये गड़बड़ हो गया है, मैंने स्लाइड रिपीट कर दी। मैंने सोचा कि मैंने डाउनवर्ड में भी यही कर रहा है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये सारा डिस्कस हो चुका है और ये सब कुछ सही है। तो अभी मैं देखूँ कि मिस्टेक कैसे हो गई। एक्चुअली कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है, कुछ सही चल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं। या कहीं कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। या यहाँ 3 क्वेश्चन है। टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक पार्टिकल है, उसको हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट किया। हॉरिजॉन्टल में यदि प्रोजेक्ट करते हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, देखो नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल में एक कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल में भी एक आ जाएगा, है ना। टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेट एंड स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये सारी चीजें हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। चलो करते हैं। लेजर पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो मैंने पहले ही बोला था, जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है हमेशा वाई डायरेक्शन को यूज करना है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्लेसमेंट था वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ dt स्क्वायर, एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस h के बराबर होगा, यहाँ रख लेंगे, सारे माइनस उड़ जाएंगे। तो 11 इज इक्वल टू 10 इंटू 3/5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यदि इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मुझे मिलता है 11 इज इक्वल टू 60 प्लस 5t स्क्वायर, राइट। तो बस जैसे ये मिला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, t is equals to 1 and t is equals to minus 11/5। और हम सभी जानते हैं कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो टाइम को पॉजिटिव लिखना है। t is equals to 1 second, okay, the time of light is 1 second, the answer। next is horizontal range, horizontal range r is equals to u cos theta into time of light। cos थीटा यानी कि u cos 37 डिग्री, तो 10 इंटू 4/5 इंटू 1, ये आ गया 8 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 8 मीटर आ रही है। बाद हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। ओके, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? x is equals to 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि px, पार्टिकल को ऐसे फेंका, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। पिछले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किया था, राइट। कहीं या यहाँ पर ही कैलकुलेट किया था यू cos थीटा की वैल्यू। आप लिख भी सकते हैं प्रॉपर्ली, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का काम है। यू एक्स इज इक्वल्स टू यू cos थीटा, उसके बाद यू आई इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गया, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी लगा दिया हमने। यहाँ आ रहा है -10 इंटू 3/5 -10 इंटू 1, -16 मीटर पर सेकेंड हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है दैट इज -16 मीटर पर सेकेंड, ओके। कोई हमसे स्पीड पूछ ले तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, हमें मिलता है रूट ऑफ 320 यानी कि 8 रूट 5, ओके। वी आर गेटिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम, ओके, 8 रूट 5 मीटर पर। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आप लोग मेरा एक लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे लेक्चर्स मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आते हैं, तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहे हैं। और बाकी सब आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते। जब तक आपका मन स्ट्रांग है तब तक ही आप काम कर सकते हैं, जब आपका मन हार गया तो आप काम नहीं कर सकते हैं। यस, थैंक यू फॉर टुडे। ये मेरा लेक्चर जो था वो समाप्त हो चुका है। सारी बेसिक चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक बार फिर से टॉपिक रिकॉल कर देता हूँ। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, आज जस्ट उसके फॉर्मूलाज रिवाइज किए।
जिसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था। उसके बाद मैंने कवर किया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर, उसके बाद अपवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, एंड उसके बाद डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। और इन सब के एग्जांपल्स भी हमने साथ साथ डिस्कस किए हैं। तो मैंने जैसे बोला था, जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि यू विल गेट माय लेक्चर्स विद द बेस्ट नोट्स एंड बेस्ट एग्जांपल्स, राइट? और भी आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अभी मेरे सेशंस जो हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं, तो आप प्लीज click the subscribe button, subscribe the Unacademy channel, and click the bell icon to get further notifications of my videos, right? तो आप यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को जब भी मेरी वीडियोस आती है तो पता चल जाएगा, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यदि आप 11th क्लास में हैं तो आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है? So let's crack NEET UG with the top educators of the country with the quality content and great learning experience. So मुझे लगता है कि मेरे साथ भी आपका एक्सपीरियंस ग्रेट रहने वाला है, राइट? आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। Buy an academy subscription, use my code Rahul D and get additional 10% discount। मैंने आपको पहले ही बोला कि 12 मंथ या फिर 24 मंथ वाला ही प्रेफर करना, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 5 मंथ्स के ही पैसे देने पड़ते हैं और उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है मेरा कोड यूज करने पर, ठीक है? तो ये सब बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आप पर डिपेंड करता है, पूरी फिजिक्स आप पर डिपेंड करती है, या यदि आप मन से स्ट्रांग रहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैंने अपना लेक्चर पढ़ा दिया, लेकिन लेक्चर होने के बाद यदि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तभी आप फिजिक्स सीख सकते हैं। फिजिक्स को प्रैक्टिस के बिना नहीं सीखा जा सकता। तो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स। आप हम लोग मॉक टेस्ट क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो लोग वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल है। एच.सी. वर्मा है, शिंगेज की बुक आती है। इसके अलावा आप एररलेस यूज कर सकते हैं। एररलेस बहुत ही इजी है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी रहेगी, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो स्पीड से करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको 1 आवर में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट? तो जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है? तो प्लीज बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी ऐप, क्योंकि यदि आप अनअकैडमी ऐप बाय करते हैं तो सिर्फ मेरा ही नहीं, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनके भी लेक्चर्स देख सकते हैं, सारे स्ट्रक्चर्ड वे में। सारे के सारे टॉपिक्स वहां अवेलेबल हैं, वन बाय वन आप देख सकते हैं। आप रिपीटेड मोड पर भी देख सकते हैं, यानी कि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख सकते हैं। आज आपने पढ़ा और आप भूल गए तो कल आप फिर से देख के उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, सब कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बहुत ही ज्यादा फी पे करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख फॉर 2 years। ज्यादा भी होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, सिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन अन अकेडमी आप कोई सी भी सिटी में है, आपको सिर्फ और सिर्फ 32,400 रुपीज में 2 years के लिए मिल रहा है, एंड 1 year के लिए 27,000 रुपीज में मिल रहा है, राइट? तो आप मेरा कोड यूज कीजिए प्लीज, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आप अच्छे से लाइक प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जिस डेडिकेशन से हम लोग पढ़ाते हैं सब कुछ आपको डिलीवर हो रहा है, पूरा कंटेंट है। यहाँ पर आप सिर्फ मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन यदि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो ये कंटेंट है मेरा, ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, ठीक है? आप मुझसे वन ऑन वन चैट कर सकते हैं, मुझसे डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। तो बहुत ही फन होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है लाइव सेशंस में। तो प्लीज बाय अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड राहुल डी। थैंक यू वेरी मच, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, बाय बाय।